Good afternoon, students. I hope I'm Good audible to afternoon, all of sir. you. Okay. Good afternoon, all of you, and please respond if you are facing any problem in my voice or visibility. No, sir, it's fine. Okay, so today in today's lab class, we will discuss and verify Ohm's law. So I'm going to share the tab. So this is our experiment, and I'm also sharing the link in the chat box. Okay. So meanwhile, other students are joining. You must see a short video on Ohm's law, and I'm also sharing it in the chat box. Okay. Ohm's law. Let's see the demonstration of Ohm's law. Ohm's law states that at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor, and it is expressed as I directly proportional to V, which is mathematically written as I is equal to V divided by R, where R is a constant and is called the resistance of the conductor. The most basic quantities of electricity are voltage, current, and resistance. Ohm's law shows a simple relation between these three quantities. An electric current is the flow of electric charge. Electric charge flows when there is voltage present across a conductor. Current is Sir, measured in amps. Yes. The sir, electrical force or pressure that causes current to flow in a circuit. sir, हेलो. sir. स्क्रीन. हाँ बताइए. सर स्क्रीन ब्लड हो गया है सर. Am I audible? स्क्रीन ब्लड हो गया है. स्क्रीन ब्लर हो गया है. हाँ सर, स्क्रीन ब्लर हो गया। और वॉइस साउंड क्वालिटी ठीक थी. हाँ सर, साउंड ठीक है सर. वीडियो क्वालिटी ब्लड हो गया है. साउंड ठीक है सर, वीडियो
voltage is measured in volts. The electrical resistance of an electrical conductor is the opposition to the passage of an electric current through that conductor. Resistance is measured in ohms. Conductor or wire. The current is flowing through a wire. The voltage is the forces that cause current to flow in the wire. Assume the resistance is Sir, present in screen the is not conductor. visible, sir. Sir, please share the link in the हाँ सर chat box. I already shared in the chat box. The link is shared with you. Please check. Sir, You I got have the link? joined. Okay, sir. Okay, Vidhan has already shared. So we are moving. Okay, we are moving to our next topic. So I think all of you can see this video. Okay, so today we will discuss the Ohm's law and how we apply this particular Ohm's law for a particular component like resistance uh, and we will see on any non-ohmic component also that it will not be applied, and we will simulate for resistance and for diode. After that there will be a short quiz, you have to solve it. Okay, so these are the four icons you have to use. First one is theory, so we will first discuss about the Ohm's law and how it is applicable in terms of resistance and in terms of diode. Okay, so first in theory, first topic is objectives. So at the end of experiment, the student would be able to explain first Ohm's law, then explain Ohm's law for resistance in series, explain Ohm's law for resistance in parallel, explain non-ohmic device. After that, measure and confirm Ohm's law. So हमें ये 5 experiments perform करने हैं in our today's lab. So what is Ohm's law? The law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Such a conductor is characterized by its resistance R measured in ohms. तो ये जनरल आपका डेफिनेशन है ओम्स लॉ का. ओम्स लॉ क्या होता है? A voltage across any conductor is proportional to the current flowing through the conductor. तो ये आपका ओम्स लॉ स्टेट करता है एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज रेजिस्टेंस, जिसको R से डिनोट करते हैं. So V equals to IR, where V is in volts and it is measured across conductor. I is the current in amperes through the conductor. So these are the relations between V, I and R. Now sometimes you have to recall this V equals to IR formula. So there is a simple rule given in terms of Ohm's law triangle. So आपको जब भी इसमें confusion हो रहा है कि V is proportional to I है या V is inversely proportional to I है, so you just have to remember this Ohm's law triangle. इसमें क्या है कि एक triangle को you have to divide in 3 sections.
सो आपको ट्रायंगल के अंदर एक टी सेक्शन बनाना है, टी सेक्शन जैसे बनाओगे तो फर्स्ट सेक्शन में आपको वी रखना है, एंड लेफ्ट साइड यू हैव टू पुट आई एंड राइट साइड यू हैव टू पुट आर. सो जो आपका वी है, सो इस वी की वैल्यू क्या है, आई आर. So we can say this vertical line represents multiplication and the horizontal line represents the division. So जब भी हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल लाइन को रिमूव करके यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे. सो v इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा. इफ यू वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन i एंड v इन टर्म्स ऑफ r, तो i का रिलेशन क्या होगा, हमने जैसे बताया अभी कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स डिवीजन. सो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाई आर. सिमिलरली r की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाई आई. ठीक है. सो दिस इज द मतलब ट्रिक टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन v इक्वल्स टू आई आर. नाउ जो हमने एक्सप्लेन किया भाई यहाँ पे सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, फ्रॉम द अबव फिगर द इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल known as Ohm's law triangle, where V voltage is placed on the top of the section, the current I is placed to the left section and R is placed to the right. So the line that divides the left and right section indicates multiplication, and the divider line between the top and bottom sections indicates division. ठीक है. Now explanation of Ohm's law. तो Ohm's law जनरली जो एप्लीकेबल होता है, दैट इज एप्लीकेबल ऑन लीनियर सर्किट्स और लीनियर कंपोनेंट्स. सो लीनियर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लीनियर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है. सो इफ यू टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस पे लीनियर रिलेशन होता है, एज वी कैन सी फ्रॉम अबव इक्वेशन v इक्वल्स टू आई आर. IR R आपका कांस्टेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I. सो लीनियर कंपोनेंट्स में आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल है. सो फॉर मेजरमेंट ऑफ एंड प्रूविंग द थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस में हम कैसे मेजर करेंगे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं, उसके लिए रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, एंड हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टमीटर प्लेस करते हैं टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, एंड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट यू हैव टू प्लेस अ मीटर इन द सर्किट. सो इस अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हम जीरो मानते हैं. अगर हम जीरो नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस भी आएगा जो आपके टोटल इफेक्ट को हैम्पर करेगा. ठीक है, मतलब आप एग्जैक्टली जितना वोल्टेज दे रहे हो उतना यहाँ पे आपका नहीं शो होगा, कुछ आपका वोल्टेज यहाँ से भी डिवाइड होगा. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस है वो जीरो है. इफ रेजिस्टेंस इज जीरो देन देयर विल नॉट बी एनी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कंपोनेंट. तो सारा का सारा वोल्टेज जो आपका Vs है वो सारा का सारा आपका R1 के अक्रॉस होगा, एंड यू कैन इजिली मेजर एंड कंफर्म दैट ऑल द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर R1. ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज आपको पता चल गया और I आपका यहाँ पे मेजर कर रहे हो, तो V और I में जो रिलेशन होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद फ्रॉम द सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज VR इक्वल्स टू Vs, एंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज गिवन इज I इक्वल्स टू VR अपॉन R. सो I जो होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, सो I इक्वल्स टू VR डिवाइड बाई R. यहां तक किसी को कहीं पे डाउट है? कहीं पे भी? नो सर. Okay. Now moving to our next section, which is explanation of Ohm's law in series resistance circuit. तो अब हम बात करेंगे एक हमारे पास सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाले कनेक्शन को हम दो नाम से जानते हैं.
फर्स्ट वन इज करंट कपल्ड और डेजी चैन कपल्ड। इनका ये दो नाम है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो द करंट इन अ सीरीज सर्किट goes through every component in the circuit. Therefore, all the components in a series connection carry the same current. There is only one path in the series circuit in which the current can flow. तो सीरीज सर्किट में होता क्या है कि सारे का सारा जो कंपोनेंट होता है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर और एक सीरीज में। दैट मीन्स कि जो दोनों उसके जो सारे के सारे कंपोनेंट्स होंगे उनके बीच में कोई कंपोनेंट अलग से कनेक्ट नहीं होगा अक्रॉस रजिस्टर के। फॉर एग्जांपल इस सर्किट को अगर हम देखें तो इस सर्किट में दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर और इसके बीच में कहीं पे भी कोई दूसरा कंपोनेंट इसके पैरेलल में नहीं लगा हुआ है, या यहाँ से कोई भी सर्किट ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है, कोई पाथ ब्रेक नहीं हो रहा है। जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही सेम करंट इसमें भी फ्लो करेगा। सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो भी करंट आपका सोर्स वोल्टेज के थ्रू फ्लो होगा दैट विल बी फ्लोन थ्रू दीज टू रेजिस्टेंसेस। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू फ्लो करना पड़ेगा उसको। सो इन दैट केस सीरीज सर्किट्स में करंट आपका सेम होता है। सो I इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3। इसका मतलब है कि जो टोटल करंट है I दैट इज इक्वल्स टू I1 मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 को I1 से रिप्रेजेंट किया हमने, एंड R2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I2 से, और R3 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उसको I3 से। दीज ऑल करंट्स आर सेम। और अगर सीरीज आपका कनेक्शन है इन दैट केस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी सिंपल समेशन ऑफ all the resistances. So R1 plus R2 plus R3 will be equivalent resistance. Now voltage में भी सेम होगा आपका, क्योंकि वोल्टेज आपका सीरीज में डिवीजन हो रहा है एज पर KVL जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टोटल समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ लूप मस्ट बी जीरो एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। सो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आपका जो टोटल समेशन ऑफ लूप वोल्टेज है वो जीरो होना चाहिए। So in that term, यहाँ पे अगर आपका Vs है, then this Vs will be distributed in between these two resistors, such as कि total summation of voltage must be zero. So Vs आपका इन दोनों resistances के बीच में divide हो जाएगा as per the proportional constants जो R1 और R2 है, और total summation आपका जो होगा supply voltage का that will be equals to voltage across all the resistors का summation होगा। ओके, नाउ सीरीज रेजिस्टर्स सर्किट्स में हमें क्या करना है कि जब हमें ओम्स लॉ प्रूव करना है देन वी हैव टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस बोथ रेजिस्टर्स। ठीक है, दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस कॉमन जो वोल्टेज होगा उसको हमें मेजर करना है, एंड करंट विल बी सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंसेस एंड सर्किट्स। तो करंट का तो आपका कोई झंझट ही नहीं है, कहीं से भी आप मेजर कर सकते हो। इस एमीटर को कहीं पे भी आप प्लेस करोगे तो सेम करंट मेजर होगा। नाउ इस सर्किट में अगर देखें हम तो इस सर्किट में केवल दो रेजिस्टेंसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, R1 एंड R2। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 plus R2 and the total current of the circuit is IT equals to supply voltage divided by equivalent resistance। और अगर आपके पास टोटल करंट है और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। सो IT आपको पता चल गया दैट इज Vs अपॉन R इक्विवेलेंट जहां पे R1 plus R2 है, देन R1 क्या हो जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाई Vs डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, इन सिमिलर वे यू कैन इजीली कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस R2। ठीक है, in a series circuit the current through each of the resistors is the same and the voltage across the circuit is the sum of the voltage across the each resistor। यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ठीक है,
Now we move to our next topic, which is Ohm's law for resistances in parallel. अब हम पैरेलल सर्किट्स में देखेंगे कि ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करना है. So parallel circuits में क्या होता है? All the components are connected in parallel combination. So if two or more components are connected in parallel, they have the same potential difference across their ends. The potential differences across the components are the same in magnitude, and they also have identical polarities. The same voltage is applicable to all circuit components connected in parallel. So the total current is the sum of the currents through the individual components in accordance to the Kirchhoff's current law. So parallel circuits में क्या होता है? सीरीज सर्किट में आपका करंट सेम होता था थ्रू आउट द सर्किट, बट इन पैरेलल सर्किट्स ऑल वोल्टेजेस आर सेम. फॉर एग्जांपल इस सर्किट की बात करें हम, सो इन दिस सर्किट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक का एंड दूसरे रेजिस्टर के एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है. देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट इन बिटवीन. वैसे ही जो दूसरा एंड है वो भी दूसरे एंड से उस रेजिस्टर के कनेक्टेड है, एंड इन दिस केस आल्सो देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट. सो अगर डायरेक्ट कनेक्शन है, मींस शॉर्ट सर्किट है इन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स, तो क्या होगा? ये बोथ रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डेफिनेशन है जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कंपोनेंट्स. और सेम यहाँ पे भी हमें मानना है. यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 0. अगर आप रेजिस्टेंस का 0 मानते हो, दैट मींस कि देयर विल नॉट बी एनी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस अमीटर. तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप इस अमीटर के अक्रॉस नहीं होगा, और जो टोटल वोल्टेज सप्लाई का है वो सारा का सारा वोल्टेज आपका R1 एंड R2 के अक्रॉस होगा, एंड दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस वोल्टमीटर प्रेजेंट ओवर R2. ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है. एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या स्पेशलिटी है कि जो वोल्टेजेस हैं वो सेम होंगी ऑल कंपोनेंट्स के क्रॉस, क्योंकि VS आपने अप्लाई किया है तो सेम VS आपका इसके क्रॉस भी होगा, और सेम VS आपका R2 के क्रॉस भी होगा. बट हियर द डिवीजन इज इन बिटवीन द करंट. तो करंट आपका डिवाइड होगा, तो जो IT यहाँ पे टोटल करंट फ्लो होगा थ्रू सप्लाई वोल्टेज, that will be divided between these two resistances R1 and R2. अब वो R1 और R2 का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसके थ्रू ये डिवाइड होगा, वो आगे एक्सप्लेन किया होगा हमने. सो पैरेलल रेजिस्टर्स में R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमें इस तरह से निकालते हैं. इनवर्सली आप समेशन करते हो ऑल रेजिस्टेंसेस का, जितने भी कंपोनेंट जितने भी सर्किट में आपके प्रेजेंट है. सो इनवर्स समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. तो दो रेजिस्टेंसेस के लिए आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. अब अगर हमें टोटल करंट हमें निकालना है, तो टोटल करंट वी नो दैट टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो टोटल सप्लाई वोल्टेज आपका यहाँ पे VS था, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका Req है, जो कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 है. सो टोटल करंट आपका सर्किट में कितना हो जाएगा? VS डिवाइडेड बाय Req. Req की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे आप, तो टोटल करंट मिल जाएगा. Now if you want to calculate the value of currents for a particular component like R1 and R2, तो आपको सिंपल करंट की इक्वेशन पता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू R1 कैन बी कैलकुलेटेड बाय सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय R1. तो IR1 क्या हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज जो उसके अक्रॉस वोल्टेज है, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया था सारा का सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस है और इसके अक्रॉस भी है. सो IR1 क्या हो जाएगा? VS डिवाइड बाय R1. और सिमिलर वे में IR2 क्या हो जाएगा? VS डिवाइड बाय R2. सो IR1 हो गया और IR2 हो गया. सो इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इज द सेम एंड द टोटल करंट इज द सम ऑफ द करंट्स थ्रू ईच रेजिस्टर. यहां तक कोई डाउट? No, sir.
ठीक है। नाउ हमने सीरीज, पैरेलल और सिंपल कनेक्शन का मेजरमेंट देख लिया कि कैसे हमें मेजरमेंट करना है। अब हम नॉन ओमिक डिवाइसेस में देखेंगे कि नॉन ओमिक डिवाइसेस होती क्या है। सो दोज कंपोनेंट्स व्हिच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज ओमिक डिवाइसेस, और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करे दोज आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो ओमिक डिवाइसेस थे, लाइक जो रेजिस्टेंस है वो ओमिक कंपोनेंट है, मींस V is directly proportional to current, voltage directly proportional to current, so उसमें Ohm's law applicable है। Now we will discuss the devices which do not follow Ohm's law। तो ऐसे components कौन से हैं? So the simple example is diode। तो यहाँ पे हमने diode का एक explanation दिया है। So a non-ohmic device is a device that doesn't obey Ohm's law, that is the resistance is not constant। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। इनिशियली हमने जो डिस्कस किए थे केसेस, उसमें रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू कांस्टेंट थी। सो द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होगी। सो द डिवाइस इज सेड टू बी नॉन ओमिक। In this case, V versus I graph is not a straight line but has some curvy shape. Such devices do not have a constant value of resistance, and the resistance is called dynamic resistance because it is constantly changing. Examples of such devices are tungsten filament, diode, thermistor, etc. So ये आपके नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस में जो रेजिस्टेंस होगा, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन V एंड I, that will not be constant। आपका कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, मतलब हमेशा चेंज होता रहेगा एज यू इंक्रीज द वोल्टेज और डिक्रीज द करंट। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे वर्क करता है जब हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन में हमें एग्जैक्ट इक्वेशन पता चलेगी। सो इन दैट इक्वेशन आई इज एक्सपोनेंशियली रिलेटेड विद वोल्टेज अक्रॉस डायोड। सो आई जो होता है वो एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होता है वोल्टेज अक्रॉस डायोड के। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू से दैट दिस रिलेशन इज नॉट लीनियर और लीनियर, बिकॉज रेजिस्टेंस के केस में हमारे पास रिलेशन था, हम पहले से जानते थे कि V इक्वल्स टू आई आर है। बट डायोड के केस में हमारे पास अभी रिलेशन नहीं है, वो हम जब पीएन जंक्शन पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में तो हमें रिलेशन पता चल जाएगा। बट इन द मीन टाइम हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट इन डायोड सिचुएशन। Now Ohm's law is a very useful law, but it only applies to devices that behaves like resistors, that is I is simply proportional to V। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि Ohm's law केवल लीनियर सर्किट्स में एप्लीकेबल होता है जहां पे I is directly proportional to V होता है, means current is directly proportional to voltage। Now Ohm's law describes one possible relationship between V and I in a component, but there are others like capacitors, diodes, thermistors। ठीक है, सो ओम्स लॉ क्या करता है कि V और I में रिलेशनशिप को शो करता है, बट अदर कंपोनेंट्स भी हैं जो जैसे कैपेसिटर्स है एंड डायोड्स एंड थर्मिस्टर्स है। इसमें कैपेसिटर में जो रिलेशन होता है वो I प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, मीन्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही डायोड में जो होता है वो आई ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। तो डायोड में हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है कि डायोड ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। थर्मिस्टर में टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है और जैसे घटाते हो वैसे घटता है। तो अभी तक इस पूरे थ्योरी में कहीं पे किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज
प्रोसीजर। अब हमें ये देखना है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे हमें मेजरमेंट करना है और कैसे हमें प्रूव करना है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन रेजिस्टर्स एंड नॉट एप्लीकेबल इन डायोड्स। तो उसके लिए हमारे पास एक सेटअप यहाँ पे गिवन है। So let us go through the experiment of confirming Ohm's law. So first step is set DC voltage between 0 to 30 volt. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक ऐसा सर्किट होगा। इस सर्किट में हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये सप्लाई वोल्टेज है वो हम डीसी दे रहे हैं। सो इस सप्लाई वोल्टेज को सबसे पहले हमें सेट करना है बिटवीन 0 टू 30 वोल्ट। सो 0 टू 30 वोल्ट में एक भी कोई वैल्यू लेके, सपोज 15 वोल्ट ले लिया और सेट कर दिया हमने। देन यू हैव टू सेट द रेजिस्टेंसेस वैल्यू, जो आपके रेजिस्टेंसेस गिवन है सर्किट में उनकी वैल्यू को सेट करना है बिटवीन 1 किलो ओम से 100 किलो ओम। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये सर्किट है उसमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट करेंगे बिटवीन 1 किलो ओम टू 100 किलो ओम। उसके बाद वोल्टमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू रेजिस्टर एंड अमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ रेजिस्टर। सो हमारे पास वोल्टमीटर पता ही है कि वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और जो अमीटर है वो सीरीज में लगा है रेजिस्टेंस के इन द सर्किट। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करोगे और डीसी वोल्टेज सप्लाई करोगे तो आपके पास एक रीडिंग आएगी, उस रीडिंग को आपको नोट डाउन करना है। Now increase the DC voltage by factor of 2 and note voltmeter and ammeter readings. Keep resistance value constant. अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, एक तरह से स्लोप इंडिकेट करता है। अगर लाइन के इक्वेशन से आप इसको वो करो, कंपेयर करो, लाइक y इक्वल्स टू mx में क्या होता है, m is the slope and y and x are variables। तो y और x हमारे वहां पे वेरिएबल होते थे और m is the slope। सो एक स्ट्रेट लाइन के लिए m should be constant, हमारी m की वैल्यू जो होती थी वो कांस्टेंट होती थी। सो दैट कैन बी रिलेटेड विद दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू ir। अब v इक्वल्स टू ir में v और i हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, एंड जो r है दैट will work as a slope। क्लियर है? v इक्वल्स टू ir और y इक्वल्स टू mx इक्वेशन कैसे रिलेटेड है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो m हमारा कांस्टेंट होता है इस केस में, तो r हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। अगर आपने r को वेरी किया दैट मीन्स कि आप स्लोप वेरी कर रहे हो, और स्लोप वेरी करोगे तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप स्लोप वेरी करोगे जो आपका फाइनली जो आपका आउटपुट आएगा, जो आप क्या करते हो पॉइंट से पॉइंट को कनेक्ट करते हो, तो दैट विल नॉट कम एज लीनियर। ठीक है, तो हमें उसको अवॉइड करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रखोगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। जितना आप वोल्टेज में इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे उसके करस्पॉन्डिंगली आपका जो करंट ऑफ द सर्किट है वो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज द डीसी वोल्टेज बाय 2 फैक्टर एंड नोट voltmeter and ammeter readings. Keep resistance value constant, then plot the VI graph to verify Ohm's law. अब इसी 4 स्टेप को जो 2 से और 6 स्टेप के बीच में आपने किया है, इसी को बार बार अलग अलग वैल्यू के लिए, रीडिंग के लिए आपको यूज करना है। और उसके बाद फाइनल जब आप प्लॉट देखोगे तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। सो देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ we see that the resistance to adhere to Ohm's law, thus resistance is said to be an ohmic device। so उस प्लॉट से हम ये कह सकते हैं कि resistance is following Ohm's law। क्लियर है? any doubt? No doubt, sir. No, sir. okay, so इसके बाद हमारे पास जो अरेंजमेंट था that is resistances are connected in series combination। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसा आपके पास सर्किट था,
in this circuit you can see R1 and R2 are connected in series combination and voltmeter is placed across R1 and R2. So R1 और R2 के whole combination के across हमने voltmeter place किया है and ammeter is connected in series with R1 and R2. तो यहां से हमें जो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में किया था सेम एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है. क्या करना है? सबसे पहले डीसी वोल्टेज हमें सेट करना है बिटवीन 0 to 30 वोल्ट. So set DC voltage 0 to 30 volt. After that, here the resistances are connected in series. So set the resistance value R1 between 1 kilo ohm to 100 kilo ohm. So R1 की वैल्यू जो हमें जो सेट करनी होगी वो रेंज है हमारे पास 1 किलो ओम टू 100 किलो ओम एंड R2 का जो रेंज गिवन है दैट इज बिटवीन 5 to 15 किलो ओम. तो इन दोनों वैल्यू में से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से 2 किलो ओम इसके लिए रख दिया और इसके लिए 10 किलो ओम रख दिया. सो 2 किलो ओम और 10 किलो ओम हमने पहले पुट कर दिया. उसके बाद हमारे पास जैसे ही आप पुट करोगे इसकी वैल्यू और डीसी वोल्टेज की वैल्यू तो आपके पास एक रीडिंग आएगी इन वोल्टमीटर और दूसरा अमीटर में. उस वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग को आप नोट डाउन करोगे. देन यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप. एंड स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. तो इसकी वैल्यू को हमें सेम रखते हुए डीसी की वैल्यू को डीसी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना है. जैसे जैसे आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपके पास नई नई रीडिंग मिलेगी एंड यू हैव टू नोट इट डाउन. जब आप सारी रीडिंग्स को नोट कर लोगे सो हम अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 पॉइंट्स लेंगे, 10 to 15 रीडिंग्स लेंगे और उसके बाद प्लॉट करेंगे ग्राफ. सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ VI वोल्टेज और करंट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे दैट विल बी अ लीनियर ग्राफ. तो एक लीनियर ग्राफ आएगा एंड इट विल वेरीफाई ओम्स लॉ. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. एनी डाउट? ठीक है. सो थर्ड एक्सपेरिमेंट, अब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सिंपल सर्किट हो गया, अब हमारे पास पैरेलल सर्किट बचा. तो पैरेलल सर्किट में हमारे पास क्या होगा? कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने देखा था. दो रेजिस्टेंसेस आर टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब पैरेलल के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है तो यू हैव टू प्लेस वोल्टमीटर अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस. तो एक वोल्टमीटर हमने प्लेस कर दिया और अमीटर को सीरीज में, सीरीज तो नहीं कहेंगे, इसके कॉम्बिनेशन के सीरीज में. ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन के सीरीज में अमीटर प्लेस कर दिया आपने. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको जब एक बार रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आपने सेट कर दी गिवन वैल्यूज का रेंज जो दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 की वैल्यू 100 ओम से 2 किलो ओम दिया है एंड R2 की वैल्यू 1 से 30 किलो ओम दिया है. तो एक बार आपने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम कर दी, मतलब फिक्स कर दी, देन यू हैव टू कीप इट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम. तो इसमें डीसी की वैल्यू को आपको चेंज करना है. तो VDC की वैल्यू को आप बार बार चेंज करोगे और सिमिलरली जैसा आपने प्रीवियस केसेस में किया है रीडिंग नोट करोगे वोल्टमीटर और एमीटर की. और जब 10-15 रीडिंग आप नोट कर लोगे देन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I. ठीक है, तो ये पैरेलल का हो गया. इतना समझ में आया सबको? कहीं पे भी किसी को डाउट? सर ईच कॉम्बिनेशन के लिए कितना रीडिंग लेंगे? 5 to 10 आप लो, 5 to 10 में आपका क्लियर हो जाएगा. अगर लीनियर ग्राफ दे रहा है दैट मीन्स की ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. सो मैं एक आपका एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सिंपल वाला आप कर लोगे, सीरीज भी कर लोगे. सीरीज या पैरेलल में से कोई एक आप बताओ, मैं कोई एक कर देता हूँ. नाउ वी विल मूव टू आवर सिमुलेशन सेक्शन. सिमुलेशन सेक्शन में हमारे पास देखो इतने सारे हैं एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू परफॉर्म. सो पहला है आपका ओम्स लॉ. ये सिंपल सर्किट वाला होगा. ये आपके पास सर्किट होगा और इसमें आपके पास सर्किट नहीं होगा, आपको कनेक्शन खुद से करना है. सेकंड आपका सीरीज सर्किट है जो पहले से बना हुआ है. थर्ड वाले में आपको सर्किट ड्रॉ करना है. फोर्थ पैरेलल सर्किट है और ये वाला आपको ड्रॉ करना है.
तो सीरीज ऑफ पैरेलल में से आप बताओ कौन सा करना है, उसको हम परफॉर्म पैरेलल करेंगे। कीजिए सर। ठीक है, सो पैरेलल ड्रॉ सर्किट हम करते हैं। अगर ये पैरेलल ड्रॉ सर्किट हो जाएगा दैट मीन्स आप सारा कर ले जाओगे। नेटवर्क इज स्लो लिटिल बिट। हाँ, खुल गया। ठीक है, सो पैरेलल सर्किट में हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास पूरा सर्किट हमें कनेक्ट करना है। तो ये आपके पास वायर के कनेक्शंस हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो आप एक जगह से ड्रैग करोगे और दूसरे को कनेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने ड्रैग किया और कनेक्ट किया। फिर अगर पैरेलल में है तो ये रेजिस्टेंसेस आपस में एंड कनेक्टेड होंगे, तो ऐसे ड्रैग करके आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको इन दोनों पॉइंट्स को भी कनेक्ट करना है क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। और वोल्टेज मेजर करना है आपको, तो वोल्टेज आपको इसके अक्रॉस करना है रेजिस्टेंसेस के। तो आप ऐसे इसको कनेक्ट करोगे और ये वाला टर्मिनल आप ऐसे कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट आपको करंट भी मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए एक टर्मिनल आपने यहाँ पे लगाया इसके सीरीज में, और ये वाला टर्मिनल आपने यहाँ पे लगाया। नाउ सब आपने सप्लाई दे दिया है, सारी चीजें आपने कर दी है, कनेक्शन आपका ठीक है। एक ग्राउंड आपका बचा है, तो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जब आप ये कर लोगे तो आपको यू हैव टू कंफर्म कि आपका जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है, चेक कनेक्शन, दूसरा है डिलीट कनेक्शन। अगर आपका चेक कनेक्शन से सही आता है, ये बता देता है कि सारा कनेक्शन सही है, तब तो सही है। अदरवाइज अगर कुछ एरर आता है तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इस पे आप क्लिक करोगे डिलीट कनेक्शन पे। तो हम चेक कनेक्शन करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास शो हो रहा है राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस और डीसी वैल्यू पुट करेंगे। अब उसको पुट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस वैल्यू एंड रेजिस्टेंस टू वैल्यू। तो ये रेंज गिवन है आपके पास स्लाइडर, इस स्लाइडर को केवल स्लाइड करना है और आपको वोल्टेज डिसाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक बार डीसी वोल्टेज पे क्लिक किए। जैसे ही डीसी वोल्टेज पे क्लिक किया हमारे पास शो हो रहा है 13 वोल्ट का डीसी अप्लाई कर दिया आपने। जब 13 वोल्ट का डीसी अप्लाई किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करो पहले। आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया, 900 है अभी, 900 ओम। और यहाँ पे आपका एक मैसेज शो हो रहा है, दैट इज सेम रेजिस्टेंस R1 वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक दे रहा है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम रखनी है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अब आपने R1 रख दिया, अब आपको R2 रखना है। तो R2 की वैल्यू को हमने कुछ रख दिया। अब जैसे ही आप स्लाइडर पर क्लिक करोगे तो 19 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 900 और 19। डीसी वैल्यू हो गई है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। हाँ बोल रहे हो सर, यहाँ एमीटर और मीटर का रिस्पांस भी कैलकुलेट करना है क्या? एमीटर और वोल्टमीटर का प्लीज रिस्पांस रिपीट। नहीं करना है?
सर एमीटर लीस्ट काउंट क्या कैलकुलेट नहीं करना है, लीस्ट काउंट मतलब क्योंकि तो मैं कैसे एमीटर वोल्टमीटर रीडिंग आ रहा है। सॉरी, आपकी आवाज क्रैक कर रही है, वॉइस इज क्रैकिंग मींस। ओके सर, फिर से बताओगे आप? आप एक बार एमीटर एक बार चैट लीस्ट। में लिखो, चैट में लिखो आप। ओके ओके, मैं चैट में लिख रहा हूँ। एमीटर एंड वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट नेसेसरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लीस्ट काउंट से कोई मतलब नहीं है मीटर एंड वोल्टमीटर का। यहाँ पे जो हमारे पास इक्विपमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका मेजरमेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आप ये वैल्यूज सेट करोगे। तो ये ऐसा मतलब कोडिंग किया गया है कि आपको उससे मतलब नहीं है, जो भी आपका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट से मतलब नहीं है यहाँ पे आपको बस ये वैल्यूज यू हैव टू सेट, जो VDC एंड रेजिस्टेंस वैल्यूज है, these values you have to set only। क्लियर है? सो और किसी को कहीं पे भी डाउट? देखिए, ये जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं ये आपके फिजिकल तो है नहीं, फिजिकली कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये है क्या आखिर में? दीज आर ऑल कोडिंग बेस्ड कंपोनेंट्स, मतलब इनकी कोडिंग की गई है इस पेज पे। सो ऐसी कोडिंग की गई है कि इसमें आपको बस सिंपल जो फंक्शंस है दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब इतना डिटेल में नहीं होता है ये। तो आपको बस यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, जो आपका लीस्ट काउंट और वो फिजिकल फैक्टर्स जो हम पढ़ते हैं जहाँ पे अफेक्ट करता है कंपोनेंट को, वो हम फिजिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रहता है कंपोनेंट। तो यहाँ पे सच कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सर्किटरी है। सो जैसे ही आप सर हाँ बताइए। सर रेजिस्टेंस 1 को सर ओम में लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस 2 को सर किलो में ऐसे क्यों लेंगे? देखो यहाँ पे जो स्लाइडर है ना, ये ऐसे वैल्यू इसका सेट हुआ है कि इसकी वैल्यू आप ओम्स में ही ले सकते हो और इसकी वैल्यू आप किलो ओम में ही ले सकते हो, R2 की वैल्यू। फॉर एग्जांपल इसमें एक्सपेरिमेंट टेबल में आप चेक करो लेफ्ट साइड में, तो R1 की वैल्यू है वो ओम्स में ही गिवन है, एंड R2 की वैल्यू जो है वो किलो ओम में गिवन है। तो ये लेकिन ऐसा सर आपका, हम इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तब तो दिक्कत आएगा थोड़ा सा, हाँ क्योंकि वो तो किलो में आएगा, होगा। वो तो आएगा ही। नहीं, यहाँ पे आपका पैरेलल आप कर रहे हो ना, तो पैरेलल जब आप कर रहे हो तो किलो में आएगा नहीं आपका। कभी भी जब पैरेलल में आप करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस की भी स्मॉल आता है। तो यहाँ पे आपका R2 की वैल्यू आप 19 किलो ओम ले रहे हो और R1 की वैल्यू आप 900 किलो ओम ले रहे हो, तो जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी स्मॉलर देन दिस 900 वैल्यू। तो 900 से भी स्मॉलर आएगा वो वैल्यू, तो किलो ओम में तो आएगा ही नहीं वो। ठीक है? देखिए, पैरेलल ओके सर। कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का हम यूज कब करते हैं? सपोज हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, बहुत हाई वैल्यू रेजिस्टेंस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? स्मॉलर वैल्यू रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। जब आप स्मॉलर वैल्यू रेजिस्टेंसेस को सीरीज में करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन अचीव हायर वैल्यू। और जब हमारे पास इस बहुत ही स्मॉल वैल्यू की रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, लार्जर वैल्यू रेजिस्टेंसेस को आप क्या करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उससे भी स्मॉल वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड इन ओम्स। दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो ओम्स में दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ स्लाइडर की वैल्यू आपको बस स्लाइड करनी है और स्लाइडर से आपका वैल्यू चेंज होगा।
क्लियर है? Yes, एनी sir. डाउट? ठीक है। Yes, sir. अब Yes, sir. जैसे ही आप ये करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड टू टेबल शो हो रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू नोट डाउन हो गई लेफ्ट साइड में एक्सपेरिमेंट टेबल में। 900 ओम्स R1 की, R2 की 19 किलो ओम्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख लो 0.189959, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपकी 900 थी, उससे भी बहुत स्मॉल वैल्यू आई। अब वोल्टेज अक्रॉस दीज रेजिस्टेंसेस 13 वोल्ट आपने अप्लाई किया था डीसी वोल्टेज, और 13 ही आपको मिल रहा है। और करंट जो थ्रू आउट द सर्किट है 15.1 मिली एम्पियर आ रहा है। तो ये आपका वोल्टेज और करंट की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, डीसी वोल्टेज की वैल्यू को आपको चेंज करना है। तो आप डीसी वोल्टेज की वैल्यू चेंज किए, सपोज आपने 0 दिया तो 0 आएगा, 0 से आपने बढ़ाया तो 2 आया तो 2 आएगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे यहाँ से स्लाइडर से, और यहाँ पे ऐड टू टेबल करते जाओ, आपके पास रीडिंग नोट डाउन होती जाएगी इन द एक्सपेरिमेंट टेबल। Now you can see you can easily take 10 to 15 points by sliding this DC voltage. ठीक है, तो लेट्स से हमने 13 पॉइंट्स लिए, 13 पॉइंट्स, एंड यू हैव टू चेक द प्लॉट। सो यहाँ पे प्लॉट आपका शो हो रहा है, इस प्लॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्लॉट पे क्लिक करोगे आपके पास एक ग्राफ आएगा वी आई का, जिसमें वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ V, और करंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपका एक लीनियर ग्राफ आ रहा है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ओम्स लॉ परफॉर्म करना है, देन ओम्स लॉ ड्रॉ सर्किट करना है, देन ओम्स लॉ फॉर सीरीज रेजिस्टेंस करना है, देन ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज ड्रॉ सर्किट करना है, और ये पैरेलल करना है। तो मैंने एक बताया है, आपको ये 5 करना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. करिए।
सर हाँ जी बताइए। सर मैं नंबर लिख रहा हूँ, नहीं हो रहा है। वैल्यू कहाँ लिख पे? रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। इसी में सर, किस वाले एक्सपेरिमेंट में? और ओम्स लॉ सीरीज वाले में नंबर लिख रहा हूँ, नंबर नंबर नहीं लिखा रहा है। वो डीसी और उसको रेजिस्टेंस वन को उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, उससे नंबर प्लॉट होगा। स्लाइडर आपको इधर उधर करना है, स्लाइडर को आप मूव कराओ तो हाँ हाँ नंबर आपका जाएगा। वहां पे नोट नहीं करना कुछ भी, लिखने हाँ के लिए हो नहीं हो जाएगा। हो ओ सर यहाँ पे तो तीनों ही किलो ओम में है, वो सीरीज वाले में। सीरीज वाले में तीनों ही तीनों, हाँ किलो में है ना ये, हाँ किलो तीनों में ही केवल है। किलो ओम में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रेजिस्टेंसेस हमें सर, इंक्रीज करनी है। ठीक है सर, तो कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। सर यहाँ पे बोला है सर रेजिस्टेंस वन और रेजिस्टेंस टू को हमेशा सेम रहना पड़ेगा लीनियर ग्राफ के Yes, लिए, तो sir. हमें Yes, sir. लीनियर ग्राफ ही लेना है। हाँ वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि रेजिस्टेंस आपका क्या होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो लीनियर ग्राफ नहीं पाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर स्लोप ही चेंज कर दोगे तो कहाँ से आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा? तो सर सिर्फ वोल्ट बदलेंगे अलग अलग उसमें। हाँ पहले आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार सेट करनी है, और हाँ उसके बाद से डीसी की वोल्टेज को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक ले जाना है। उसमें 10 ओके 12 सर। पॉइंट जो भी आप बनाओ उसको ओके सर। प्लॉट कर ओके दो। ओके। ओके। सर कर लिया एक, नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाए। हाँ अभी आपको ये पूरा करना है। पहले तो सिंपल वाले ओम्स लॉ करना है, फिर ये सीरीज वाले सर्किट्स ड्रॉ करना है दोनों, फिर पैरेलल ओके का एक आपका बचा हुआ है। तो ओके 5 आपको करना है कंप्लीट। सर इसको फोन में करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर, जब भी ठीक इसको है, मतलब। आप समझ गए ना कि कैसे करना है? हाँ सर, पूरा प्रोसेस मालूम है, लेकिन सर ये बार बार रेजिस्टेंस मतलब टच हो जा रहा है तो वो बार चेंज हो जा रहा है, बहुत लैग भी हो रहा है ये। ठीक है, ठीक है तो एक दो तो कर लिया होगा एटलीस्ट। हाँ सर, मैंने तीन मतलब पहला जो सिंपल सर्किट में 3 रीडिंग ले लिया है मैंने, हाँ लेकिन तब उसके बाद तब सर ठीक बार है। बार रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है। 3 रीडिंग भी ले लिया ना तो उस पर भी लीनियर ग्राफ शो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ सर, हो जाएगा तो ग्राफ। ठीक है, तो अगर बाकी लोगों ने कर लिया हो तो हम आगे मूव करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा है, लास्ट वाला हमारा है नॉन ओमिक डिवाइस का। तो नॉन ओमिक डिवाइस में हमें क्या करना है? नॉन ओमिक डिवाइस में लेट अस गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ कंफर्मिंग नॉन ओमिक डिवाइस। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डीसी वोल्टेज सेट करना है। सो इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर आप देखो तो डीसी वोल्टेज यहाँ पे गिवन है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के सीरीज में अमीटर लगा हुआ है टू मेजर द करंट थ्रू सर्किट।
उसके बाद डायोड है, और डायोड के अक्रॉस हमें वोल्टमीटर पुट किया है टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस डायोड। अब हमें सबसे पहले डीसी की वोल्टेज सेट करनी है, दैट इज 5 वोल्ट्स। उसके बाद यूज द रेजिस्टर ऑफ 100 किलो ओम एंड द डायोड। फिर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें 100 किलो ओम रखना है और डायोड को यूज करना है। देन वोल्टमीटर इज प्लेस्ड पैरेलल टू सिलिकॉन डायोड, ये हमने सिलिकॉन डायोड माना है, एंड अमीटर सीरीज विथ रेजिस्टर। नाउ नोट द वोल्टमीटर एंड अमीटर रीडिंग फॉर डीसी वोल्टेज 5 वोल्ट। सो 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका रीडिंग आएगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर ही दी है और ये सिलिकॉन डायोड है, तो आपके पास एक रीडिंग आएगा, उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 किलो ओम आपने पहले सेट की थी, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करना है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, यहाँ पे रीडिंग चेंज होगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो सर्किट के। और ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पे डीसी वोल्टेज आपने कांस्टेंट रखा है। तो जब आपने डीसी वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली आपका रीडिंग चेंज होगा। तो टेक द रीडिंग एंड नोट वोल्टमीटर रीडिंग अक्रॉस सिलिकॉन डायोड एंड अमीटर रीडिंग। उसके बाद आपको प्लॉट करना है एंड ऑब्जर्व द चेंज। द चेंज इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल, V versus I graph is not a straight line, therefore from the graph we see that the diode does not adhere to Ohm's law। तो ये आपका प्रोसीजर है, जब आप करोगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो आपके पास रीडिंग्स आएंगी। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे रीडिंग आएगी, उन रीडिंग को आपको प्लॉट करना है। जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास कोई भी लीनियर ग्राफ शो नहीं होगा। सो इसको हमें चेक करने के लिए हम जाएंगे वापस सिमुलेशन सेक्शन में। Now in simulation section you have last one is verifying non-ohmic device। ओके, सो ये आपके पास अभी पूरा लोड नहीं हुआ है, पेज लोड होने में टाइम ले रहा है। ओके, सो लोड हो गया और ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमें कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओनली वी नीड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम वोल्टेज की वैल्यू सेट करेंगे। डीसी वोल्टेज की वैल्यू सपोज हमने 5 वोल्ट सेट कर दिया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने इनिशियली 100 रखा। जब हमने डीसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की तो ऑब्वियसली आपके पास करंट की और वोल्टेज अक्रॉस डायोड की वैल्यू आएगी, उसको हमें नोट डाउन करना है। देन यू हैव टू चेंज द रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया तो आपके पास रीडिंग आएगी। ऐसे आपको वैल्यूज चेंज करनी है कीपिंग डीसी वोल्टेज वैल्यू कांस्टेंट। सो डीसी वोल्टेज की जो वैल्यू है उसको आपको कांस्टेंट रखना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो हम स्लाइड करते हुए पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं अपने टेबल में, सो दैट कि हमारे पास एक कर्व आए जो लीनियर ना हो। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स ले लिए। अब यू हैव टू क्लिक ऑन प्लॉट। जब प्लॉट पे क्लिक करोगे देखो ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये आपका कुछ कर्विलीनियर ग्राफ आ रहा है, कर्व आ रहा है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि जो आपका डायोड है दैट इज नॉट ओमिक डिवाइस। तो ओमिक डिवाइस नहीं है आपका डायोड। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके,
और भी टाइप का So in the ग्राफ आ रहा chat है box सर। I can see, हाँ चैट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन, हाँ विधान ने क्वेश्चन किया है, होम अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो अनुराग हैज रिटन पैरेलल, आई थिंक सुमित, यस सर, आदित्य पैरेलल होता है, यस पैरेलल होता है। इसका रीजन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पैरेलल और सीरीज क्यों होता है। सो लेट अस सी दिस। हम सीरीज और पैरेलल में जाते हैं, सिंपली जो सर्किट्स है हमारे पास। सो देखो, अब फर्स्ट जो चीज है आपको समझने के लिए कि पैरेलल ही क्यों होता है और सीरीज क्यों नहीं होता है। तो सीरीज में देखो, आप अगर सीरीज में कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, सपोज आपके बल्ब कनेक्टेड है, ट्यूबलाइट्स कनेक्टेड है, और कोई भी होम अप्लायंस कनेक्टेड है, तो सीरीज में अगर कनेक्ट है तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए पर्टिकुलर हम कैसे ऑन ऑफ करेंगे? इस सर्किट में कहीं पे भी एक स्विच लगाएंगे। तो अगर हम स्विच इसके सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा, टोटल सर्किट आपका कट आउट हो जाएगा, मतलब कोई सप्लाई किसी और अप्लायंस को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस लगाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसके अक्रॉस लगाओगे स्विच तो दैट मीन्स कि उस पाथ को करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? सपोज ये एक स्विच है, ये जो वोल्टमीटर हमने रखा है ये एक स्विच है। तो अगर ये स्विच है और आपको इसको वर्क कराना है और आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो अगर आप इसको स्विच ऑन ऑफ करोगे तो दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पाथ को आप ऑन ऑफ कर रहे हो, मतलब यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है उसको आप अवॉइड कर रहे हो या दे रहे हो। अगर इस पर्टिकुलर स्विच को आप ऑन ऑफ करोगे तो ये इस पाथ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पे आप एक शॉर्ट सर्किट पुट कर दो। अगर शॉर्ट सर्किट पुट करोगे तो शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो स्विच हम सीरीज में लगा नहीं सकते, सीरीज में लगाओगे तो पूरे सर्किट का आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली हमें अगर वर्क कराना है तो हम पैरेलल में ही उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसको देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है, मतलब इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा। बट जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज आता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है एसी का, और वो कांस्टेंट वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करता है, मतलब वो कांस्टेंट वोल्टेज एक फिक्स रहता है कि 120 वोल्ट्स का अगर आ रहा है तो 120 वोल्ट्स ही रहेगा। तो उसको अगर हमें देखा जाए तो इस सीरीज सर्किट में फिट नहीं होगा। सीरीज सर्किट में क्या होगा, हर अप्लायंस के लिए आपके पास डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होगा एज पर देयर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। तो पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें जितनी सप्लाई आती है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स के लिए सेम होती है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो होम अप्लायंसेज होते हैं दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, not in series combination. So Anurag has written, because sir in series resistance gets added and parallel it's in, yes you are correct. So विधान आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा था? ये सर ये पूरा समझ आ गया। ठीक है, सो अब इसके बाद हमारे पास जो सिमुलेशन के बाद आता है क्विज सेक्शन। सो आपके पास 15 मिनट्स हैं, 15 to 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, और ये आपके पास क्विज है, 7 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। सो आप यहाँ पे परफॉर्म करो और चेक करो कि आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कन्हैया सर आपके पास हमारे साथ हैं, कन्हैया सर, कन्हैया सर आपको असिस्ट करेंगे। अभी तक किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज क्विज सॉल्व करते हैं। गूगल क्लासरूम कोड
सुमित मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, एक बार प्लीज चेक। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज बताइए। ओके, थैंक यू। सो कन्हैया सर, आर यू देयर? कन्हैया सर? सर हाँ सर, अब आप क्विज टेक ओवर कीजिए, क्विज आप करा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ओके सर। हेलो। 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 यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Start करो. What is the value of the resistor or no? ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है अपने। इंडिकेशन वोल्ट मीटर और एमीटर में इंडिकेशन दे रहा है, ये वोल्टेज और एम्पियर। ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर 4 2.7 किलो ओम होगा। 4 आ रहा है सर, 2.7 किलो ओम। Shunt resistor is labeled in the following the range 150 ampere, so 50 millivolt.
What is the resistance if the sun in ohm? हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर, बोल हेलो रहे हो फर्स्ट वाला 2.7 नहीं होगा सर। हेलो सर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। हाँ हेलो सर, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सर, बोल रहे हो फर्स्ट वाला 2.7 नहीं होगा सर, क्योंकि वो मिली एम्प्स में है। देखिए सर, वहाँ एम्पियर का मतलब अच्छा सही। एमीटर का रीडिंग मिली एम्प्स में दिया हुआ है। उसको तो मतलब कौन सा नॉर्मल होगा? एमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना रैम। आप 2700 किलो, आई थिंक सो। आई एम नॉट श्योर सर, कैलकुलेशन करो। मतलब क्योंकि वहाँ मिली एम। ओके। सेकंड वाला कौन सा होगा? सर सेकंड वाला ऑप्शन 1 होगा, 333.3 म्यू ओहम। कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट वाला होगा। यस सर, यस। हाँ सर। और नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। If doubling the voltage across the resistor, doubling the current through in the resistor, then सर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा सर, रजिस्टर वैल्यू डिड नॉट चेंज। यस next सर, सेकंड ऑप्शन होगा। the fixed voltage across the fixed resistor, value of the increase the 5 time, what does the current do? सर इंक्रीज कर जाएगा 5 टाइम्स। 5 time increase लास्ट हो वाला जाएगा। सर। Anyone? यस सर, Any 5 other? टाइम इंक्रीज करेगा। Power calculate, what is the power in the given the circuit? एम्पियर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, आर गिवन नहीं है। वाट में कैलकुलेशन करना है इसका। आई सर इक्वल टू 35 वॉट होगा। 35 वॉट होगा।
Next, if the voltage given the circuit with the cut of the half, what is the current is the equal? Current निकालना है अपने को. V is equal to V upon R. I is equal to V upon R. सिंपल की वजह 60 milliampere sir. what? Second वाला 60 milliampere. 60 milliampere. हाँ sir. Any other कोई? Resistance and current are relation between. Inverse 60 milliampere होगा. 7 question. Last. Resistance and current. Sir, inversely Inversely, sir. proportional. Inversely proportional. Sure. Yes sir, yes sir. अब क्विज कंप्लीट हो गया अपना. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ सिक्स्थ हो गया है, हो गया है. क्विज कंप्लीट होने के बाद यहाँ से सबमिशन करो. सबमिशन करने के बाद क्रॉस चेक करो. फर्स्ट आपका सही है 2.7 किलो ओम. सेकंड आपका सही है 33.3 माइक्रो ओम. थर्ड आपका सही है रजिस्टर वैल्यू इज नॉट चेंज. फोर्थ सही है आपका इंक्रीज द फैक्टर 5 टाइम. फिफ्थ आपका राइट है और सिक्स आपका राइट है 6 मिलीमीटर. रजिस्टर से करंट वाला ये भी सही है. तो ये आपके 7 क्वेश्चन सही होगा. और अदर ये कनेक्शन इनमें कुछ दिक्कत है क्या? प्रैक्टिस के लिए बोला गया था ना, अभी प्रैक्टिस करने के लिए. प्रैक्टिस हो गया था क्या आपको सीरीज वाले का? Yes sir. सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये ओम्स का है. एक बार ट्राई और कर लो आप, ऐसे कनेक्शन कर लो इनके. शो हो रहा है? चेक कनेक्शन. राइट कनेक्शन. सेट द रेजिस्टेंस इनपुट डीसी वोल्ट. सिंपल है. रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है और वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करके ऐड द टेबल करनी है. 10 से 15 रीडिंग होनी चाहिए आपकी बेटर आउटपुट के लिए. कंटिन्यू अगेन एंड अगेन. add to table, increase the voltage, add to table, increase the voltage, add table. After reading, check the total reading. 15 reading. Plot graph. Linear graph शो हो गया. और कौन सा नहीं हुआ था आपका? सीरीज वाला हो गया था आपका? हाँ सर, ये वाला हो गया था. सीरीज के ये सीरीज कनेक्शन करो. ये सीरीज में लगाओ इसको.
इसको रजिस्टर के पैरेलल में लगाओ कॉम्बिनेशन के। कनेक्शन के लिए जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन आता है L1 L3 से, L3 L7 से, L4 L10 से। इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करने के बाद कनेक्शन वेरीफाई, राइट कनेक्शन, ओके, देन रजिस्टर्स की वैल्यू पुट, सेम रजिस्टर की वैल्यू पुट करो, वोल्टेज इंक्रीज करो, एड टू टेबल रीडिंग बढ़ाओ, कंटिन्यू। वही 10 से 15 के मिडिल में रीडिंग होनी चाहिए आपकी बेटर ग्राफ के लिए। Increase the voltage and add table continue 15 times. और again plot ये plot show है। और कौन सा इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है क्या कोई सा सर्किट? नहीं सर, कोई इनकम्प्लीट नहीं है। तो सारे हो गए। तो एंडिंग टुडे सेक्शन और कंप्लीट हो गया क्लास आपका। सर अटेंडेंस अटेंडेंस नोट डाउन कर लिए मैंने, जो प्रेजेंट है उनकी नोट डाउन कर ली। ओके फिर सर। भी चैट बॉक्स में आपके जो एनरोलमेंट नंबर है लास्ट 4 डिजिट डाल देना। चैट बॉक्स में लास्ट के 4 डिजिट एनरोलमेंट और नाम। सर इसका कोई टेस्ट होगा क्या IMCRP पे? ना लैब करनी है। और जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है वो अगली लैब में आके थोड़ा सा कर लेना डिस्कस, जिनका कई लोगों का फर्स्ट क्लास है। सर कैन आई लीव दिस क्लास? ओके ठीक, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।